Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss that which documents are required after getting your name in the final merit list of MNS 2023, because every one of you is saying that the incomplete documents are required at the time of admission. But I told you that last year they sent a email that if anyone's documents are incomplete, then send, otherwise they will cancel the candidature. But this time some candidates are saying that they have said to us that your incomplete documents will be required at the time of admission. So I'm going to show you that which documents are required at the time of admission. This is the last year's mail that student got who got selected in the MNS final merit list. So you can see these documents and you can have an idea that if any of your documents are incomplete according to this list, then please arrange that document, because these documents are very important. If any one of the documents are missing, then your candidature will surely get cancelled at the time of admission. Okay, so make sure that you have all the documents that are mentioned in this list. Okay, so let's just discuss these. These are the joining instructions, so please read it once. First point is you must fulfill the eligibility criteria is mentioned in the advertisement in the response to you have applied to the course. ये इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन वो करते हैं ना, नोटिफिकेशन, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो PDF आता है उसमें जो बोलते हैं दैट यू शुड बी अनमैरिड, यू शुड बी एज क्राइटेरिया जो होता है वो इंडियन आर्मी और आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप के होने चाहिए. ठीक है, उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें. एंड यू मस्ट हैव पास्ड 12th with the 50% marks in physics, chemistry, bio and English. These are talking about that criteria. Okay, your testimonials for the eligibility will be scrutinized by the College of Nursing. At the time of admission, they will clarify or they will verify every single detail that you have filled and that are required for the taking in the admission in the in the MNS college. Okay, the second point is your eligibility for admission to the above course will be subjected to verification of all academic documents as mandated by the university. Original certificate and self-attested copy or under mentioned documents are will be submitted. मतलब कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाने हैं, उसके बाद साथ में आपको सेल्फ असिस्टेड मतलब कि जो फोटोकॉपी होती है ना, उस पर आपका एक फ़ोटो एंड उस फोटो पर आपका जो सिग्नेचर होता है वो आधा फ़ोटो पे होना चाहिए और आधा वो जो आप फोटो का पेज होता है ना उस पर होना चाहिए. ठीक है, तो वो हो गया सेल्फ असिस्टेड का मतलब. ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स हो गए. अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, लेट्स सी. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आर मैट्रिक बाई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. सेकंड इज सीनियर सेकेंडरी 10+2 बाई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. थर्ड इज मार्कशीट सीनियर सेकेंडरी 10+2 इक्विवेलेंट. ओके, देन योर नीट स्कोर कार्ड. इसमें 2020 का मांगा हुआ है, बट आपको किसका करना है, 2023 का. ठीक है, बिकॉज आप इस साल एडमिशन लोगे ना, दैट्स वाई. फिर है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जो आपका अगर इफ़ यू आर ग्रेजुएट. देखो जैसे आपका लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट. जैसे उस टाइम जब आप इंटरव्यू देने गई थी तब उन्होंने आपसे पूछा होगा कि मतलब जैसे किसी ने मान लो 2020 में या 2019 में उसने अपनी 12th करी. ठीक है, और वो इस साल MNS के इंटरव्यू के लिए गया. देन दे विल आस्क यू, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं कि आपने कब करी 12th, कितने साल हो गए, है ना. क्योंकि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो जो बुकलेट होती है ना इन्फॉर्मेशन वाली कि कब करिए क्या कर रहे हो, वो सारी उनके पास जाती है. उसके अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. तब वो पूछेंगे कि आपने अच्छा 12th इतने साल पहले कर ली, तो आपने मतलब कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की है या कोई और कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो. देन अगर आपने कहा है कि जैसे आप BSc कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और कोर्स कर रहे हो, या फिर BSc नर्सिंग कर रहे हो. ठीक है, तो अगर आपका वो कंप्लीट हो गया है, मतलब कि जैसे आपकी BSc कंप्लीट हो गई है या कोई और कोर्स या डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, देन आपको उसका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट मिलती है ना वो लेके जाना है. ऐसा मत करना कि आपने इंटरव्यू में तो बोल दिया कि हाँ हमने ग्रेजुएशन कर ली है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप उनसे बोल दो कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है और हमने सिर्फ 12th करी है, ग्रेजुएशन नहीं करी है. तो ऐसा मत करना, क्योंकि वो आपके बुकलेट में मेंशन करते हैं कि ये बच्चा ग्रेजुएट है. ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने अगर इंटरव्यू में मेंशन किया है कि हमने ग्रेजुएशन कर ली है, तो अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना. ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड. मतलब जैसे मान लो किसी ने अगर 12th करी है तो 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है. अदरवाइज जैसे किसी ने अगर BSc करी है या फिर कोई और डिग्री करी है तो आपको माइग्रेशन, और उसका अगर कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर कंप्लीट हो गया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस कॉलेज से लेके जाना है.
बट अगर कंप्लीट हो गया है वो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस कॉलेज का लेके जाना है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सेम गोज़ फॉर द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर जैसे सिर्फ 12th करी है तो आपको 12th का ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी अपने स्कूल से। बट अगर आप ग्रेजुएटेड हो या फिर कोई और डिप्लोमा वगैरह कर रखा है और वो कम्प्लीटेड है तो अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उस कॉलेज से लेके जाना है या उस यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया है वहाँ से लेके जाना है। 12th का तो लेके जाना ही ऑब्वियसली, बट वो भी लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप SC ST या फिर NCC कैंडिडेट हो तो अगर NCC कैंडिडेट हो तो NCC C का सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल वाला, ठीक है। और सेल्फ असिस्टेड भी लेके जाना है। और अगर SC ST के कैंडिडेट हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको लेके जाना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST या फिर NCC वालों को लेके जाना है। जनरल OBC EWS SC ST NCC सारे बच्चों को लेके जाना है, ठीक। फिर पैन कार्ड, जैसे मान लो अभी किसी बच्चे का किसी के पास ना, सबके पास पैन कार्ड नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं हुआ, तो सारे बच्चे अप्लाई कर दो पैन कार्ड के लिए। जिसके पास भी पैन कार्ड नहीं है वो अप्लाई कर दो, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको चाहिए पैन कार्ड, ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा है कि जैसे चांसेस तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के हैं क्योंकि सब देखे आए तो सबका ऑलमोस्ट अच्छा ही गया है, ठीक है। किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा वो जाने या भगवान जाने, ठीक है। बट चांस नहीं लेना है। मान लो जैसे कि सबके आए, किसी के अगर कम मार्क्स भी हैं तब भी पैन कार्ड बनवाने डाल दो, क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसी चीज़ है कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पैन कार्ड बनवाई लो, ठीक। नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट, इफ़ देयर इज़ गैप ऑफ मोर देन 2 ईयर बिटवीन क्लास 10 एंड 12th, मतलब गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आपके 10th और क्लास 10th और 12th के बीच में अगर कोई गैप है 2 साल से ज़्यादा, मतलब नॉर्मली 11th और 12th, बट अगर किसी को 3 या 4 साल लगे हैं तो उसको आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि क्यों लगे वो इतने साल, ठीक। नेक्स्ट इज़ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो सबके पास में ही होगा। नेक्स्ट इज़ अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज लास्ट अटेंडेड इंडिकेटिंग विच कोर्स यू अंडरवेंट, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लिविंग, सब्जेक्ट यू ऑफर्ड एंड द टोटल परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस, ठीक है। मतलब जैसे मान लो किसी ने ग्रेजुएशन करी BSc की, जैसे नॉर्मली मैं BSc कंसिडर कर ले रही हूँ, किसी ने और कुछ किया होगा तो वो एक अलग चीज़ हो गई। जैसे BSc नर्सिंग कोई अच्छे कॉलेज से कर रहा है स्टेट से या फिर एम्स वगैरह थे, तो वो एक अलग है, वो कंप्लीट भी नहीं हुई होगी अभी तो, ठीक। तो फिर अगर ऐसा कुछ किया है तो आपका जो कॉलेज का जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है, ठीक है। उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को आपने एडमिशन लिया, किस डेट को आपने वहाँ से लीव किया कॉलेज को, ठीक है। और आपने किस सब्जेक्ट से किया, और आपका टोटल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, मतलब आपने कितने पूरे साल में कितने दिन आप कॉलेज गए। जो होता है ना जैसे MBBS में 85% या 85% होता है, पता नहीं 75% जो अटेंडेंस होती है ना वो मैंडेटरी होती है। तो ऐसा वहाँ पे तो आपको वो आपके जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे ना उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप कॉलेज कितने दिन गए हो, ठीक। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन साइंड बाय यू एंड योर पेरेंट्स दैट यू हैव अनमैरिड, ठीक है। डॉक्यूमेंट एविडेंस एंड अबाउट मैरिटल स्टेटस, डाइवोर्सी, विडो और लीगल सेपरेटेड विदाउट एनकम्बरेंस इफ़ एप्लीकेबल, ओके। दिस द पॉइंट इज़ अबाउट कि अगर आप जैसे आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कि दैट यू आर डिक्लेरेशन साइन बाई, मतलब कि अगर आप अनमेरिड हो, ठीक है, तो A4 साइज का पेपर लेना, दैट उसमें आपको ये मेंशन करना है कि मैं अनमेरिड हूँ और आपके पेरेंट के सिग्नेचर और आपके सिग्नेचर। इन केस इफ़ यू आर बारबेडो, डाइवोर्सी और लीगली सेपरेटेड, ठीक है, तो आपको वो डाइवोर्स के जो पेपर्स होते हैं ना या फिर बारबेडो का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लेके जाना है और वहाँ पे आपको शो करना है, ठीक। तो ये इतने से डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए। मैं एक बार इसको इंक को ना क्लियर कर देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज, ठीक। मिस मत करना कोई भी डॉक्यूमेंट, वरना कैंसिल कर देंगे वो लोग, सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बट हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो कोई भी कमी छोड़नी नहीं है उनको, मतलब इतना सा भी नहीं देना है कि जिससे वो हमारा कुछ भी कैंसिल करने की कोशिश करें, ठीक। कोशिश करेंगे ही क्यों, उनका बस ये होता है कि आप लोग अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करें देन यू शुड बी लाइक प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है इंडियन आर्मी के अंदर। तो बस वो आपका डिसिप्लिन, आपका कितना सिंसियर हो, सिंसियरिटी, यही सब चेक करते रहते हैं। मेक श्योर दैट यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी टू टेक एडमिशन इन द मैनेज कॉलेज। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel, and all the best for your bright future, and share this video to the other students also who have given the exam of MNS 2023. That will be helpful. This will be helpful to them also. So thank you, bye bye and take care.